ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ದಿವಸವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದರೊಳಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೇಮ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯ ತಲೆಬರಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ: ದೇವಾಶ್ರಿತನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನೆಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ. ಈ ಸಂಗೀತ ರೂಪವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉನ್ನತನಾದವನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವವನೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಾಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಾಡಿ. ಈ ದಿನವು ಕರ್ತನದಲ್ಲೇ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ. ಉನ್ನತನಾದವನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವವನೇ, ಮರೆ ಹೋಕ್ಕವನು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು. ನನ್ನ ಶರಣನು ದುರ್ಗವು ಭರವಸವು, ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು. ನನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಾಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಿ ಕಾಯುವನು. ನನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಾಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ತಾನೇ ಒದಗಿಸಿ ಕಾಯುವನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಂಗೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಯೆಹೋವನ ಸತ್ಯತೆಯು ಸದಾ ಇರುವುದು. ಯಾಹುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯಾಹುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೀಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಾರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಉಂಟು ಕರ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಈ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸಾರುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜನರು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅನೇಕರು ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡು. ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಾರುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡು.
ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಿಷನರಿಗಳಾಗಿ, ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಏನೋ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಯವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ನೀಡೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಪಡಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜರುಗುವಂತೆ ಅನ್ನೋ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಿರಿಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಾಪಾಲಕನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನಿಂದ, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿಷನ್ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗಾಗಿಯೂ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಷನರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಸು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಸು. ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬರಿಗಾಗಿಯೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟ್ರೆಜರರ್, ಬೆನೆವಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರೆಜರರ್, ಎಲ್ಲ DS-ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ, ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗವು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಸಂಧಿ 14ನೇ ವಚನದಿಂದ 17ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು 16ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಓದುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Romans chapter 1 verses 14 to 17 is the portion. I will be reading the 16th verse. ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲ. ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇವರ ಬಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಅಂತೂ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. एक दिन संडे के दिन सुबह दोपहर के समय पर एक लड़का दौड़कर अपने माँ के पास आकर कहता है, मम्मी मम्मी मैंने सचिन तेंदुलकर को छू लिया है, मैंने सचिन तेंदुलकर को छुआ है. कैसे? उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया है और उन्होंने अपने हाथ को जो है धोया नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही रख कर कहा कि ये हाथ को जो है सचिन तेंदुलकर ने स्पर्श किया है और इसीलिए मैं इसे धोऊंगा नहीं, क्योंकि उनके हाथों की खुशबू इस हाथ में है कहकर वो कहने लगे. और उसके बाद उसकी माँ जो है ये कैसा पागलपन है कहकर वो सोचने लगी. लेकिन बेटा कहने लगा, माँ ये मेरे लिए जो है एक सुपर हीरो, एक सुपर क्रिकेटर जिन्होंने मेरे हाथ को मिलाया है, मेरे लिए सबसे बड़ी यादगार की बात रहेगी. और उन्हें सब दोस्तों को जाकर, अपने फ्रेंड्स को जाकर, लोगों को जाकर बताने लगे कि देखो मैंने सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाया है. और ये बात जो है देखकर सब लोग हैरान रह गए. बट एनीवे मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस स्टोरी के माध्यम से कि एक छोटा लड़का एक सुपर क्रिकेटर, सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर के हाथ मिलाने को लेकर इतना एक्साइट होकर लोगों को बताने लगा. आज मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते आज मैं और आप जो है अपने जीवन में सबसे बड़े व्यक्ति को, एक महान अद्भुत कार्य करने वाले व्यक्ति को, यीशु मसीह से हाथ क्या, यीशु मसीह ने हमें गले लगाया है, उद्धार दिया है, तो उनके बारे में बताना कितना अनिवार्य है या फिर कितना जरूरी है. तो अगर आप कहेंगे why we should tell about the Jesus, क्यों हम यीशु मसीह के बारे में कहना है,
लोगों को या फिर औरों को क्यों बताना है करके एक प्रश्न आ सकता है। इसका उत्तर हमें ये मिलता है रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23वें वचन के अंदर, कि मनुष्य जो है अपने पापों में डूबकर परमेश्वर से दूर हो चुका है, अपने मार्गों को खो चुका है, और इसीलिए इस मनुष्य को ढूंढकर उनको पापों से छुड़ाकर परमेश्वर के पास लाना, यह हम सभी के लिए जरूरी है। और ये जरूरत है आज की सबसे बड़ी जरूरत है, हम कह सकते हैं। दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू शेयर द गॉस्पेल टू द पीपल। लोगों को जो है आपके परमेश्वर के वचन को बताना कहकर, तो आप कहेंगे व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं गॉड्स मिशन एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर की मिशन है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ढूंढकर परमेश्वर के पास लेकर आए और उनको उद्धार का अनुभव में चलाए। सो आई विल से, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? क्या परमेश्वर ने इसके लिए कुछ किया है क्या? लेट मी जस्ट गो बैक टू द जेनेसिस। उत्पत्ति के यहाँ पर हम जाएंगे, जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जो फल नहीं खाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जो है जाकर उस फल को खाए और पाप का दंड उन्होंने पाया। और क्या हुआ उसके बाद? हम ये देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर आकर आदम से मिलना चाहा, हवा से मिलना चाहा, लेकिन दोनों जो है परमेश्वर के नजर से छुप गए थे करके देखते हैं। लेकिन वहां पर उनके नंगेपन को, उनके पाप को ढकने के लिए कौन आया? पहले परमेश्वर स्वयं आया। God himself he came. So God initiated the mission. परमेश्वर जो है इस मिशन की या फिर इस सेवा को जो है उन्होंने शुरुआत की है। इट वॉज द बर्डन ऑफ गॉड। परमेश्वर का एक भार था कि मैंने मेरे अपने हाथों से रचाया हुआ इस मनुष्य को जो है मैं ऐसे ही छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही पाप के अंदर रहने नहीं दूंगा, बल्कि मैं जाकर उनको वापस से अपने तरफ ले लूंगा कहकर हम देखते हैं कि सबसे पहला बलि अर्पण वहां पर कर परमेश्वर ने उनके नंगेपन को एक मेमने के चर्म से उन्होंने ढांक दिया करके देखते हैं। सो गॉड इज द इनिशिएटर ऑफ मिशन एंड इवेंजलिज्म। परमेश्वर की सेवा को जो है शुरुआत किसने की है, या सेवा को शुरुआत किसने की है? इट इज अ गॉड। परमेश्वर ने जो है किया है। परमेश्वर ने आदम को ढूंढ कर आया। परमेश्वर जो है कायन को ढूंढते हुए आया। परमेश्वर जो है अब्राहम को ढूंढते हुए उनको बुलाकर ये कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा एक बड़े राष्ट्र को बनाऊंगा। परमेश्वर ने जो है जब सारी पृथ्वी के ऊपर लोग जो है अलग अलग तरह के पापों में फंसे हुए थे, उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि गॉड ग्रीव्ड इन हिज हार्ट। परमेश्वर जो है अपने हृदय में बहुत ही दुख उठाए और कहा कि ये कैसा, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया कहकर कहने लगे। लेकिन उस टाइम पर भी परमेश्वर ने वापस एक व्यक्ति को भेजा और वो था नोहा को भेजकर कहा कि लोगों को कहो जाओ अपने पापों से पश्चाताप करो और मन को फिराओ और परमेश्वर की ओर हो जाओ। लेकिन कोई नहीं हुआ। हम जानते हैं स्टोरी, जस्ट आई वांट टू कट शॉर्ट देयर। और उसके बाद अगर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उनको कहा कि जाओ मेरे लोगों को, इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर आओ। और उसके बाद हम देखते हैं आगे कि यहोशुआ को परमेश्वर ने चुना, जजेस यानी कि न्यायाधीश को चुना, राजाओं को चुना, नबियों को चुना। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन सारे लोगों के द्वारा ये चाहता था कि लोग जो भटके हुए हैं वो उनके पास रहे। दैट इज द अल्टीमेट मिशन। ये परमेश्वर का मिशन है। क्या यहीं पर छोड़ दिया? नो, स्टिल पीपल गो है, पीपल ऐसे लोग जो है ऐसे इसी तरह से पाप में बढ़ते गए। तो क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने आखिरी में ये प्लान जताया, वो ये है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और तुम्हारे लिए इस धरती के ऊपर भेजा। सो गॉड सेंट हिज ओनली सन। दैट वाज द ग्रेटेस्ट मिशन। सबसे बड़ा मिशन था वो कि परमेश्वर ने अपने बेटे को यहाँ पर भेज दिया। क्यों? बिकॉज ही लव्ड द वर्ल्ड। क्योंकि परमेश्वर ने पूरे संसार से, हम सभी से, फॉर एवरीबॉडी, हर एक लोगों से जो उन्होंने प्यार कर उन्हें भेजा कहकर देखते हैं। देन जीसस हिमसेल्फ, यीशु मसीह स्वयं इस मिशन को पूरा किए, उस क्रूस के ऊपर अपना प्राण देकर और सारे मानव जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग तय किया और सीधा किया। और इस उद्धार के मार्ग को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं जो है 12 शिष्यों को चुने, 70 शिष्यों को चुने, 120 शिष्य जो है यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहे थे। हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन जो है पर जब 120 लोग जो है वहां पर
परमेश्वर की यानी कि बाट जो रहे थे, पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, जहां पर उन्होंने सामर्थ्य को पाकर आगे उन्होंने वचन को बढ़ाया करके देखते हैं। सो इट इज अ गॉड्स मिशन who has began, who has initiated, उन्होंने प्रारंभ की है, लेकिन इसे यीशु मसीह ने आगे बढ़ाया, उसके बाद उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। बट अब क्या है, इट इज अ बिलीवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सेकेंड थिंग इज, दूसरी बात यह है कि आज मैं और आप जो है एक विश्वासी होने के नाते ये मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस परमेश्वर के भार को, मिशन को मेरे अंदर लेकर मैं लोगों तक पहुंचाऊं, मैं लोगों तक लेकर जाऊं। परमेश्वर का सेवक किस तरह से कहता है, when we are having the salvation or receiving Christ as the greatest privilege, then this privilege comes with the responsibility. ये एक सौभाग्यता जो है मेरे और तुम्हारे पास इस तरह से आती है कि यीशु मसीह के बहुतायत के प्यार को हमने अनुभव किया, उनके जीवन को अनुभव कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। वो जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि मैं और आप जो है इस यीशु मसीह के प्यार को और इस सुसमाचार को लोगों तक जाकर बताओ। पेंटिकॉस्ट के दिन जब 120 शिष्य जो है जब बाट जो रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई और वे सामर्थ को पाए, अन्य भाषा में बात करने लगे। लेकिन उसी के बीच एक पतरस जो परमेश्वर का सेवक या फिर शिष्य जो सबसे कमजोर था, बलहीन था, वो खड़े होकर कहने लगा या फिर खड़े होकर सुसमाचार को प्रचार किया। और सुसमाचार को प्रचार करने के द्वारा वहां पर 3000 से भी ज्यादा लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाए करके देखते हैं। उसके आगे कलीसिया धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर लोगों ने जो है वहां पर रुका नहीं, बल्कि आगे उनके सेवा को और आगे बढ़ते गए। पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर में यानी कि सिनागोग में जाकर जब वचन को प्रचार करने वाले थे, तो उस गेट के ऊपर एक व्यक्ति को देखते हैं। वो जो है लंगड़ा था, चल नहीं पा रहा था कई दिनों से, वहां पर बैठकर लोगों से भीख मांगकर अपने जिंदगी को जी रहा था। तो उस समय पर ये दोनों व्यक्ति जाकर उस लंगड़े व्यक्ति के सामने देखने लगते हैं, तू क्या चाहता है? क्या जब कहते हैं पतरस और यूहन्ना, तो कहते हैं हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना उनको कहा मेरी ओर देख, और एक चाहत से देखने लगे। तब पतरस और यूहन्ना ये कहने लगे कि हमारे पास सोना चांदी पैसे तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से तो उठ और खड़े हो जा और चल फिरने लग गए कर कहने लगे। सो व्हाट दे हैड, जिनको उन्होंने अपने पास पाया था, जिनको अपने पास उन्होंने अनुभव किया था, उसी यीशु मसीह के नाम से उन्होंने उन लोगों को छुटकारा दिया करके देखते हैं। टुडे यू एंड आई एज अ रेस्पॉन्सिबल बिलीवर, एक बिलीवर होने के नाते आज मेरे पास जो है उसी को हम लोगों के तक देना है। पौलुस कहता है अगर मैं इस सुसमाचार को अगर दूसरों को नहीं सुनाऊं, दूसरों को नहीं बताऊं यीशु मसीह के बारे में, तो मुझ पर हाय करे कहता है। रोमियो उसका 1 अध्याय 14 से 16 वचन में ये कहता है कि मैं और आप जो है कर्जदार है, ऋणी है। किसके? पहले यहूदियों के, उसके बाद जो है आगे कहता है कि ग्रीक्स के और सभी लोगों के। अगर मैं उस वचन को नहीं सुनाता हूं तो मैं कर्जदार हूं। किसका? परमेश्वर का वचन नहीं सुनाने की वजह से। आगे ये कहता है पौलुस 2 कोरिन्थियों के 5वें अध्याय 14 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है मुझे विवश करता है कि मैं यीशु मसीह के बारे में जाकर बताऊं। सो ऑल दिस थिंग्स व्हाट पॉल सेज इज दैट टुडे यू एंड आई नीड टू शेयर दिस गॉस्पेल टू द वर्ल्ड। लोगों को जो है इस सुसमाचार को सुनाना, इस प्यार को लोगों तक बताना बहुत ही जरूरी है। एक छोटे से उदाहरण मैंने सुने थे हमारे पासवान से कि एक बूढ़ी व्यक्ति थी जिनकी आखिरी इच्छा ये थी, उन्होंने कहा कि जब मरने पर ही थे कुछ क्षणों में, लास्ट स्टेज पे, फिर भी उनका ये इच्छा था कि मैं यीशु मसीह के वचन को सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे भीड़ भाड़ वाली रास्ते पर मुझे जो है एक घर देकर वहीं पर रखो, और वो घर के ऊपर बैठकर या लेटकर सिर्फ इतना ही कह रहे थे, यीशु 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 यीशु। क्यों? क्योंकि आने जाने वाले लोग कम से कम नाम तो सुने, यीशु यीशु यीशु। दैट वाज आवर डिजायर, वो उनकी इच्छा थी।
प्रिय लोगों, आज मैं और आप जो है एक विश्वासी होने के नाते आज इस यीशु मसीह को जो अपने जीवन में हमने पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन को पाया है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जो बदलाव, जो आशीष हमने पाई है, वो हमारे तक सीमित ना रखते हुए मोहरों तक बताए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमें आज रोकने की इस बात को करने के लिए क्या चीजें रोक रही है? क्या मैं शर्माता हूँ? क्या मुझे परिवार में दिक्कतें हैं? क्या मैं दोस्तों से हिचकिचा रहा हूँ, या फिर कोई ऐसे टेंशन से परेशान है जिसके वजह से मैं इस वचन को या फिर यीशु मसीह के प्यार को मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ? लेट अस कम बैक। आइए हम वापस आ जाए, याद करें, इट इज ए गॉड्स मिशन बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये परमेश्वर की मिशन है लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। तीसरा जो है हम देखते हैं वो ये है, इट इज अ चर्च's रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कलीसिया की भी एक जिम्मेदारी बनती है। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय 1 और 2 वचन ये कहता है कि वहां पर पवित्र आत्मा इस कलीसिया को अगुवाई किया कि वे लोग एंटियोक से मिशनरीज के रूप में भेजे। किनको? पौलुस। इन सारे लोगों को उन्होंने जो है मिशनरी के रूप में भेजा। बारनबास, पौलुस और लोगों को उन्होंने अभिषेक करके लोगों को जो है यीशु मसीह के वचन को प्रचार करने के उन्होंने भेजा। दिस द चर्च, द एंटियोक चर्च बिगैन द मिशनरी वर्क। ये जिम्मेदारी उनकी थी। उन्होंने जान लिया कि कलीसिया की जिम्मेदारी है। तो आज ये जिम्मेदारी हमारी सारी कलीसिया की है कि हम मिशनरीज को वचन सुनाने के लिए भेजे। पौलुस जो है लिडिया को सुसमाचार सुनाने के बाद लिडिया के घर में, यानी कि फिलिपाई में, उनके घर में एक कलीसिया को प्रारंभ किया और वहां से उन्होंने जो है वचन को सारे शहर में फैलाया। व्हाट हैपेंड, यू नो, यही कलीसिया से, फिलिपी के कलीसिया से एपाफ्रोडिटस नामक व्यक्ति, यानी कि मिशनरी के रूप में पौलुस के लिए दूसरे जगह पर वचन सुनाने के लिए उनको भेजा गया था। द चर्च सेंट, एंटियोक चर्च सेंट Paul. Paul went to Philip, and Philip, the church sent Epaphroditus. The chain that it goes on. आज हम अपने जीवन के अंदर पढ़ के और कलीसिया होने के नाते ये जान ले कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे कलीसिया के द्वारा सुसमाचार को सुनाएं। बहुत सारे लोग जो है चर्च के बारे में जब आता है, हम कहते हैं कि वचन सुनाना जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ हाउ वी हैव टू शेयर द गॉस्पल, किस तरह से हम बांटे इस चर्च के द्वारा। हो सकता है कि हमारे कार्यों के द्वारा हमें बांटना है, हमारे सोशल एक्टिविटीज के द्वारा हम जताना है, लेकिन इन सभी से बढ़कर मैं 3 बातें बताऊंगा कि आज एक कलीसिया होने के नाते हम कैसे परमेश्वर की सेवा को साथ दे सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला, यू एंड आई नीड टू प्रे फॉर द मिशंस। मैं और आप जो है कलीसिया होने के नाते सारे मिशन और संस्थाओं के लिए, मिशनरीज के लिए, मिशनरी के परिवारों के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। एक कलीसिया होने के नाते प्रेइंग फॉर द मिशंस, प्रेइंग फॉर द मिशनरीज, प्रेइंग फॉर देयर फैमिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही जरूरी है कि वे लोग जब फील्ड में रहकर काम करते समय उनको कोई दिक्कत ना आए। वे लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मेरा और तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कार्य करता है। सेकेंड, द चर्च शुड सपोर्ट द मिशनरीज फाइनेंशियली। चर्च शुड सपोर्ट द मिशनरीज फाइनेंशियली। मिशनरीज को कलीसिया के द्वारा हम उनको सपोर्ट करना है फाइनेंसेस में। जो उनकी ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों के द्वारा उनको सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज कई गांवों के अंदर मिशनरीज है, पासबान है, जो लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके फिजिकली बहुत सारे नीड्स को मीट ना होने के कारण कई बार वे निराश हो जाते हैं। कई बार जो है अपने उनके बच्चों के पढ़ाई में दिक्कतें आने की वजह से वे निराश हो जाते हैं। वो निराशा की वजह से वो सेवा जो है आगे ठीक तरह से बढ़ नहीं पाती है। रीज़न क्या है कि आज मैं और आप एक कलीसिया होने के नाते फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेयर के द्वारा करना है, फाइनेंशियली करना है। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा जो है और एक बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो ये है कि मैं और आप जो है
इन सारे मिशंस के द्वारा उनके साथ में एक पार्टनरशिप बनाकर चलना है, एक पार्टनरशिप रखकर चलना है। पार्टनरशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पार्टनरशिप रखकर कलीसिया साथ साथ में चलकर उन वचनों को सुनाना ज़रूरी है। जिसमें एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा यहाँ पर। एक बार एक गांव में बच्चे सब बॉल लेकर खेल रहे थे। खेलते खेलते उनका बॉल जो है एक कुएं में गिर गया। कुएं में जैसे ही गिरा, सब बच्चों लोगों ने जो है वहाँ पर जाकर उस बॉल को पकड़ने की कोशिश की या फिर निकालने की कोशिश की। जब इस निकालने की जब कोशिश कर ही रहे थे, उसमें से एक बच्चा जो है नीचे चला गया और उस बॉल को लेने की कोशिश की, लेकिन कुएं में गिर गया। उस समय पर बाकी सब लोगों ने चिल्लाया कि मेरा बेटा जो है नीचे गिरा है कुएं में, उसको बचाओ बचाओ। और उतने में जो है वहाँ पर एक व्यक्ति, सभी लोग आ जाते हैं और एक व्यक्ति को जो है उन्होंने रस्सी डाल दी, रस्सी उनके कमर में बांधकर उनको डाल दिए नीचे, और वो बच्चे को उठाकर लेकर आ रहे थे। लेकर आते समय ये रस्सी भी उनको खींच रहे थे, लोग जो है उनको रस्सी से खींच रहे थे। प्रिय लोगों, यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो व्यक्ति रस्सी पकड़कर खींच रहा है, क्या वो इम्पोर्टेंट था, या फिर जो व्यक्ति नीचे जाकर उस बच्चे को बचाया, क्या वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट था? अगर इसमें देखेंगे, दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। जो व्यक्ति नीचे गया उस बच्चे को बचाने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बिना बच्चा आ नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ जो रस्सी पकड़कर उनको खींच रहे थे ऊपर, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे। तो आज ठीक उसी तरह से चर्च एंड मिशंस, सेवा करते समय मिशनरीज जो है, जो दूर जगह पर है, उनको सपोर्ट कर हमारा काम है कि रस्सी उनको पकड़कर हमें खींचना है, उनको सपोर्ट देना है, ताकि वे लोगों को बचाएं। तो आज हम सभी लोग, खासतौर से हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के होम मिशन संडे हम मना रहे हैं। इस होम मिशन संडे के दिन हम जितने भी मिशनरीज से हमारे कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो पासबान है, गाँवों में सेवा कर रहे हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। सो वॉट एवर, जो भी आपको ऐसा लगता है कि गॉड आपको ब्लेस किया है और आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस सुसमाचार के लिए, यू आर फ्री टू डू। और जो आपको घर में डब्बा दिया जाएगा, उसमें आप डालकर अपने ऑफरिंग को रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। और आज हम सभी लोगों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जानकर उस सुसमाचार को सुनाने के लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। और आज फिर एक बार आपने हमें इस बात को याद दिलाया कि आपकी मिशन है पिता, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है इस मिशन को पूरा करने के लिए आप सभी को, हम सभी को सहायता करें। आपके पवित्र आत्मा से अभिषेक करके हमें चलाए। लॉर्ड यू हेल्प अस, प्रभु हमें सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। अनाउंसमेंट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी लॉकडाउन आगे बढ़ चुकी है और इसलिए हमारी संडे की सर्विस जो है इसी तरह से 11 बजे यूट्यूब लाइव के द्वारा चलाई जाएगी, और वेडनेसडे यानी कि बुधवार की आराधना 8 बजे फेसबुक लाइव के द्वारा चलाई जाएगी। MYF और WSCS जो है वे लोग अब चर्च में इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन विथ सोशल डिस्टेंस एंड एवरीथिंग फॉलो करते हुए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, KPCA स्कॉलरशिप जिनको मिला है, उन्होंने अगर वीडियो अभी तक नहीं भेजे हैं, कृपया आप एक थैंक यू का वीडियो 10 से 15 सेकेंड की वीडियो आप बनाकर भेजने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बाइबल क्विज जो होगा 28 तारीख को नवंबर में 2 बजे, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन है। कृपया आप लोग अपना नाम जो है विल्सन, आइजैक, मरिया टीचर या लीना टीचर या फिर बेंजामिन, इनके पास आप दे दीजिए अपना नाम, और इसके लिए आप तैयारी करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಗರ್ ಜೋ ಬಿ ಹೇ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆಯಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಬೀನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇವರ ಹತ್ರ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾನುವಾರದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಚರ್ಚಸ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪಾಸ್ಟರೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯಾಗಿ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 2 ತಾಸು ನಾವು ಆಲಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ಆರಾಧನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶೆ ಇದೆಯಾದರೆ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ತೆರೆದಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ದೇವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯವರ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord. God bless you all. సృష్టి అంతా సృజింపబడెను, ఆ నామమునే స్తుతింతును. ఏ నామములో పాపమంతా క్షమించబడెను, ఆ నామమునే పూజింతును. ఏ నామములో దావీదు గొలియాతును ఎదురించెను, ఆ నామమునే నమ్మెదను. ఏ నామములో ఈ లోకమంతటికి రక్షణ కలుగును, ఆ నామమునే స్మరింతును.
అందినా